think that the Americans have decided that India is a strategic partner now. That's why there's a different way of treating Pakistan. امریکہ نے بھارت کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا، اس لیے پاکستان سے مختلف سلوک کر رہا۔ پاکستان افغانستان میں کسی دھڑے کی طرفداری نہیں کر رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں دو ٹوک موقف۔ ہم افغان مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں، لیکن طالبان افغان صدر سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں۔ افغان حکام کا اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا درست نہیں۔ چین ابھرتی ہوئی سپر پاور، پاکستان ساتھ کھڑا ہے۔ I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now. And I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. China is an emerging superpower. China is helping us a lot. Well, it's his option if he wants to call or not. It is business if he thinks it's necessary or not. I mean, not that I am waiting for any phone call. You know, it's his prerogative. امریکی صدر فون کرے یا نہ کرے بے تاب نہیں بیٹھا۔ امریکہ نے افغان فوجیوں کو تربیت دی، جنگ میں اربوں ڈالرز لگائے، کامیاب نہیں ہوا تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ وزیر اعظم کا پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا پاکستان اب کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بارڈر کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی ہے، افغانستان میں کچھ ہوا تو اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی و عسکری قیادت کی بھی مشاورتی بیٹھک، سیکیورٹی اداروں کی پاک افغان سرحد اور تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ۔ آرمی چیف سے جرمنی، اٹلی، فرانس اور ہالینڈ کے سفیروں کی ملاقات، خطے کی سیکیورٹی، افغانستان میں بدلتی صورتحال، یورپی یونین سے تعلقات پر بھی تبادلہ خیال۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا افغان تنازع میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں، ہماری خواہش صرف امن و استحکام ہے۔ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا۔ سفیروں نے خطے میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ سپہ سالار سے عراق کے وزیر خارجہ بھی ملے۔ ہمیں ایک تھم ملا، ایک انگلی ملی، باڈی پارٹس ملی، سوسائڈ بامبر تھا، موبائلز ملے، اس کی چھان بین کی گئی۔ اٹ واز اے بلائنڈ کیس۔ داسو حملے کا منصوبہ بھارت اور افغانستان کی خفیہ ایجنسیوں نے مل کر بنایا۔ حملے کے لیے افغان سرزمین استعمال، گاڑی سمگل کی گئی، بارود سے بھری گاڑی چینی وفد کی گاڑی سے ٹکرائی۔ جائے حادثہ سے جسم کے کچھ حصے ملے جو ممکنہ طور پر خودکش حملہ آور کے تھے۔ دہشت گردوں کا ہدف داسو نہیں، دیامر بھاشا ڈیم تھا۔ وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس، شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے چین اب تک ہونے والی تحقیقات سے مطمئن، حملے کی تہہ تک جائیں گے۔ چین کو واقعے پر تشویش تھی، چینی حکام کو جائے حادثہ کا دورہ بھی کرایا گیا۔ یہاں پہ تمام فیسیلیٹیشن نیٹ ورک گرفتار کر چکے ہیں۔ ہم گورنمنٹ آف افغانستان کو انشاءاللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو باقاعدہ طور پہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں ود پروفس آف کورس کے ان کی انوالومنٹ کے۔ داسو میں خود کو حملہ کرنے والا پاکستانی شہری نہیں تھا۔ پاکستان میں موجود تمام نیٹ ورک ہینڈلرز اور سہولت کار گرفتار ہو چکے۔ افغانستان سے مجرموں کی حوالگی کے لیے کہا جائے گا۔ گاڑی نومبر میں لاکرغار میں چھپا دی گئی تھی۔ پلان پر عمل سے ایک ہفتہ پہلے عمل درآمد کرنے والوں کو فراہم کی گئی۔ بلائنڈ کیس تھا، لیکن پاکستانی سیکیورٹی ادارے دن رات ایک کر کے تہہ تک پہنچ گئے۔ افغان حکومت کی پوزیشن کمزور، طالبان کو اقتدار میں شراکت کی پیشکش کر دی۔ دوحہ میں ہونے والے ٹرائیکا پلس مذاکرات میں افغان حکومت نے طالبان کو جنگ بندی کے بدلے آفر کی۔ افغان حکومت نے قطر کو بطور سہولت کار بنا کر پیشکش کی۔ افغان سفیر کی بیٹی اغوا نہیں ہوئی، ثبوت موجود ہیں۔ یہ کیس پاکستان کے خلاف میڈیا وار کا حصہ ہے۔ رویہ نہ بدلا تو ہمارے پاس تمام فوٹیجز موجود ہیں۔ وزیر داخلہ کی افغانستان کو وارننگ۔ شیخ رشید کا کہنا ہے اپوزیشن پنجاب میں عدم اعتماد کا شوق پورا کر لے، کچھ نہیں ہوگا۔ نواز شریف کے جو بھی ایشوز ہیں پاکستان آ کر بتائیں۔ تحریک عدم اعتماد کا شوق ہے تو پہلے سینٹ میں لے آئیں۔ شاہد خاقان عباسی کا پیپلز پارٹی کو مشورہ۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے جو ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا وہاں تحریک عدم اعتماد بھی نہیں ہوتی۔ رانا ثناء اللہ کا پنجاب حکومت گرانے کا دعویٰ۔ 30 اگست سے جلسے اور مستقبل قریب میں لانگ مارچ کا بھی اعلان۔ کہا ترین گروپ کا مقصد ریلیف حاصل کرنا تھا، حکومت گرانا نہیں۔
फिरदौस आशिक को क्यों निकाला? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फिरदौस आशिक आवान ने वजीर आला का एतमाद खो दिया था। 20 जुलाई के बाद ताल्लुकात शदीद सर्दमोहरी का शिकार थे। सियालकोट इलेक्शन जीतने के बाद ऐवान वजीर आला ने मुस्ताफी होने की हिदायत की। वजीर आला से मुलाकात के लिए फिरदौस आशिक को 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। फिरदौस आशिक ने ऐवान वजीर आज़म से भी राब्ते की कोशिश की, मगर कोई जवाब न मिला। The Punjab compulsory teaching of the Holy Quran तरमीमी बिल 2021 जो है ये मंजूर हुआ। पहली से छठी जमात तक नाज़रे के साथ कुरान पढ़ाया जाएगा। 7वीं से 10वीं तक तर्जुमे के साथ कुरान की तालीम दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा, कुरानी तालीमात पर अमल करके मुसलमान खोया मकाम हासिल कर सकते हैं। परवेज इलाही ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत पर बात करने से इनकार कर दिया। सूबाई वजीर तालीम भी हमराह थे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले से दबाव में आए मीडिया को मजीद खौफजदा करने और आज़ादी इजहार राय को कुचलने के मुतरादिफ ऐवान के अंदर और बाहर इस फैसले के खिलाफ शदीद मज़ाहमत की जाएगी। सेनेट कायमा कमेटी बराए तालीम की शदीद तनकीद। चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, ये मीडिया डेवलपमेंट नहीं बल्कि मीडिया डिस्ट्रॉइंग अथॉरिटी है। सेनेट कायमा कमेटी बराए तालीम के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी का शदीद रद्द-ए-अमल। हुकूमत का 10 नए डैम बनाने का ऐलान। पाकिस्तान में अब पानी, सूरज और हवा से बिजली बनेगी। वज़ीर आज़म का तरबेला डैम के 5वें तौसी मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। इमरान खान ने मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा, साबिक हुकूमतों के मुआहदों के बायस महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत ब्यूरोक्रेसी की तरक्कियों से मुतल्लिक बोर्ड का इजलास 2 माह के लिए मुलतवी। IMF कोरोना बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर देगा। ये रकम 23 अगस्त को स्टेट बैंक को मिल जाएगी। IMF ने माली मदद में कोई शर्त नहीं रखी। ये फंड्स अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बजट में बहुत इकदाम किए, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। वजीर खजाना शौकत तरीन पर उम्मीद। वज़ीर आला पंजाब का DG खान का दौरा। कबायली अमायदीन से मुलाकातें, मसाइल हल करने की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार ने कहा, पसमानदा इलाकों को दरपेश मसाइल का इदराक वहाँ के अवाम का वकील हूँ। वज़ीर आला ने सोडा डैम की जगह का फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया। सेक्रेटरी आपाशी ने ब्रीफिंग दी। शेरी रहमान का एंटी पाकिस्तान ट्रेंड लिस्ट की बुनियाद पर कार्रवाई के ऐलान पर इजहार तशवीश। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद को रियासत समझना बंद करे। जमहूरियत में तनकीद या सवाल करना गद्दारी नहीं होता। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए स्लो पॉइजन। 13 साल से इक़्तिदार में, बताए क्या किया? अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सवाल उठा दिया। कहते हैं, फजलुर रहमान पैसे लेकर दोबारा मैदान में आ गए। इमरान खान से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म की अब्दुल कयूम नियाज़ी को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म से एयर चीफ भी मिले। पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान से वफाकी वज़ीर शौकत तरीन और हम्माद अज़हर की अलग अलग मुलाकातें। सदर आज़ाद कश्मीर का इंतखाब। तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान महमूद और पीपल्स पार्टी के मियाँ अब्दुल वहीद ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग 17 अगस्त को होगी। नौ मुंतखब सदर 24 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। महंगाई से तंग आवाम सड़कों पर निकल आए तो हुक्मरानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये पहली हुकूमत है जो महंगाई पर बहस तो कराती है मगर नतीजा कोई नहीं निकलता। पीपल्स पार्टी के रुकन हसन मुर्तजा पंजाब असेंबली में फट पड़े। अगर आप समझते हैं कि नैब ने कोई ज्यादती की है, ये आज़ाद है, मजबूत अदली है, आप उनके पास जाएं और बताएं कि जी नैब ने ज्यादती की है। ये नहीं हो सकता कि आप बेवाओं, गरीबों,
पेंशनर्स, उनके साथ आप लूट मार करें, उन पे तो मैं कंप्रोमाइज नैब नहीं कर सकता। 90% केसेस किस से मुतल्लिक है नहीं जानता। चेयरमैन नैब का एतराफ, कहते हैं अगर आप महसूस करें नैब ज्यादती कर रहा है तो अदालतों से रुजू करें। एहतसाब इदारा किसी के खिलाफ बेबुनियाद केस नहीं बनाता, कानून के मुताबिक प्ले बार्गेन की जाती है। ख्वाजा आसिफ को आमदन से जायद असासा जात केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। रेफरेंस दायर होने तक हाजिरी से मुस्तस्ना करार दे दिया। एहतसाब अदालत लाहौर ने लीगी रहनुमा की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुशीर आलम 17 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 9 सितंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स को मुकर्रर करदा एक्स मिल रेट पर चीनी फरोख्त की मशरूत इजाजत दे दी। केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। दरख्वास्तों पर 15 दिन में फैसला करने की हिदायत। मसनूई दूध मीठा जहर बेचने वाले इंसान दुश्मन, मुल्क के लिए बदनुमा दाग, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्क की तारीख के अनोखे फ्रॉड। लाहौर की एक फैक्ट्री का जमीन पर वजूद नहीं, लेकिन टैक्स इस्तिस्ना लेती रही। मुल्तान की एक कंपनी FPR की मिली भगत से 6 अरब का टैक्स रिफंड ले उड़ी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने दोनों कंपनीज के खिलाफ मुकदमा नैब को भेज दिए। एक मिनट में 50,000 पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड। गुजरावाला के नौजवानों ने तारीख रकम कर दी। 12,500 तलबा ने पौधे लगाए। 47 ड्रोन कैमरों से रिकॉर्डिंग की गई। मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 12,500 तलबा ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। कोरोना की चौथी लहर मुंहजोर। 3 माह बाद फिर 102 अमवात, 4,934 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 8.3% रही। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है 9 दिनों में 1 करोड़ शहरियों ने वैक्सीन लगवाई। अब तक मुल्क भर में 4 करोड़ शहरी वैक्सीन लगवा चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वैक्सीन खत्म, सेंटर्स पर ताले लग गए। शहरी शदीद परेशान। सिंध की तहसील सामारों में भी वैक्सीन नायाब। मिकदार कम होने के बायस वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का रश। कराची में अमरीकी काउंसिल जनरल का KMC ऑफिस का दौरा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन मजीद ताखीर का शिकार। क्रेन बरदार बोट के एंकर्स खराब। हैंगटोंग जहाज को निकालने के लिए आज होने वाला ऑपरेशन भी खतरे में पड़ गया। यौम आज़ादी की तैयारियां पूरे जोगन पर। गलियां मोहल्ले बाजार सज गए। रंग बरंगा चरागा। इनाम रब का पाकिस्तान सबका। गैर मुस्लिम भी जश्न आज़ादी के लिए पुरजोश। पेशावर में 14 अगस्त के लिए मंदिर भी सज गए। मॉनसून का नया स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई।